اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے، زہر غموں کا پینا کتنا مشکل ہے اور انسانوں میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ زہر غموں کا پینا کتنا مشکل ہے اور انسانوں میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ سولی پہ چڑھ جانا مانا آسان سہی، سولی پہ چڑھ جانا مانا آسان سہی، مر کے زندہ ہو جانا کتنا مشکل ہے۔ بولو یسوع مسیح کے نام کی جے۔ میرا اور آپ کا یسوع جب جی اٹھا تب در حقیقت ابلیس کو مکمل طور پر شکست ہو گئی تھی۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، یسوع مسیح کے بابرکت پرجلال اور باکمال نام میں آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید قیامت المسیح میرے لیے سب سے بڑا تہوار ہے۔ جب بھی میں یہ عید سیلیبریٹ کرتا ہوں، عید یعنی خوشی، قیامت یعنی جی اٹھنا، اور مسیح یعنی مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید، تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب میں اس کو ایک بڑا تہوار کہتا ہوں تو آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ کرسمس کیا ایک چھوٹا تہوار ہے؟ عزیزو، نہیں۔ کرسمس یعنی مسیح کا تجسم جو ہے وہ ایک بہت بڑی عید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید قیامت المسیح ایک بہت بڑا تہوار ہے، ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی وعدے تھے، جتنی بھی انبوات تھیں، جو بھی خدا نے اشارے دیے تھے، اور جتنی بھی کلام مقدس کی باتیں تھیں، وہ سلسلہ بسلسلہ پوری ہوتی رہیں۔ لیکن وہ ساری باتیں، سارے اشارے ایک واقعہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ در حقیقت جو ان کی اوتھینسٹی تھی، سارے اشاروں کی، سارے سکرپچرز کی، صحائف کی، اور ان ساری انبوات یعنی نبوتوں کی تکمیل جو تھی، سمجھے کہ جو تصدیق تھی ان کی، وہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا تھا۔ اگر یسوع نہ جی اٹھتے تو گزشتہ سالوں میں جو کچھ بھی ہوا، بہت سارے سوالات جنم لے لیتے، لیکن یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ کتاب مقدس میں ایک حوالہ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب اور اس کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، آپ غور سے اس کو سنیں۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تلاوت آیت مقدسہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ عزیزو، جب یسوع اس دنیا میں آئے تو جیسے جیسے یسوع جوان ہوتے گئے، یسوع دنیا میں مشہور ہوتے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ یسوع نے عجیب معجزات دکھائے۔ مافوق الفطرت کاموں کی بنا پر یسوع کا غیر معمولی چرچا تھا۔ جہاں پہ لوگ اس کو مختلف نام دیتے تھے، یعنی ربی سمجھتے تھے، استاد سمجھتے تھے، آقا سمجھتے تھے، بادشاہ سمجھتے تھے، بعض سمجھتے تھے یہ نبیوں میں سے کوئی ہے، اور بعض کہتے تھے یہ ایلیا یا موسیٰ ہے، اور بادشاہ بھی تصور کرتے تھے۔ وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسیح کے مخالفین تھے اور اس کو ایک عام انسان سمجھتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے اوپر جو الزامات لگے تھے فقیہوں، سردار کاہنوں اور فریسیوں کی طرف سے، ان میں اول یہ تھا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یعنی پہلا جو الزام یسوع کے اوپر تھا وہ تھا شرک، یعنی یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اس کو باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اور یہ خدا میں سے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہ پہلا الزام یسوع مسیح کے اوپر لگا تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا، جانتے ہوں گے کہ یہ جو بات تھی کہ یسوع جب خدا کو باپ کہتے تھے تو باپ جو تھا قانون اول، وہ بھی اس کو بیٹا کہہ کر ہی مخاطب کرتا نظر ہمیں آتا ہے۔ دوسرا جو الزام یسوع مسیح کے اوپر یہودیوں نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسر کو جزیہ دینے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتا تھا۔ تیسرا الزام جو انہوں نے یسوع کے اوپر لگایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ رولر بریکر ہے، یہ سبت کے قوانین کو نہیں مانتا، یہ سبت کے حکم کو توڑتا ہے۔ چوتھا الزام جو یسوع مسیح کے اوپر انہوں نے لگایا تھا، یعنی یہودیوں نے، وہ یہ تھا کہ یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب کے 43ویں باب کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہودیوں کا یہ اقرار الایمان تھا۔ قوم اسرائیل اس بات پر ایمان رکھتے تھے خدا ہی یعنی اکنوم اول
या यहोवा पाक खुदा गुनाह मुआफ कर सकता है। लेकिन दुनिया में यीशु जब आए तो उन्होंने मफलूज के गुनाह मुआफ किए, गुनाह में पकड़ी गई औरत के गुनाह मुआफ किए, और इन बातों को लेकर जब वो मुख्तलिफ लोगों के गुनाह मुआफ करते थे तो लोग उसके मुखालिफ हो गए। एक और अहम इल्ज़ाम यीशु मसीह के ऊपर लगा था, और वो ये था कि ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। इसके बाद एक और अहम इल्ज़ाम जो यीशु मसीह के ऊपर लगा था वो ये था कि ये कहता है कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो ऐसे इल्ज़ामात जब यीशु मसीह के ऊपर लगे तो इन्हीं की बिना पर उसको फसह के बाद जुमेरात को यीशु ने फसह खाई, और उसी रात वो गतसमनी में जब दुआ कर रहे थे तो यहूदियों ने यीशु मसीह को रूमी सिपाहियों के हवाले कर दिया। रूमी सिपाही उसको पहले तो सरदार काहिन के पास लेकर गए, सरदार काहिन के बाद सदर अदालत में उसको पेश किया गया, फिर पिलातुस, फिर हेरोदिस, और फिर जब पिलातुस के पास दोबारा से आए तो पिलातुस ने उस पर सलीब की मौत का ऐलान सदर कर दिया, सलीब की मौत का हुक्म दे दिया। मसीह खुदावंद को कोड़े मारे गए, उसका तमस्खर उड़ाया गया, उसको तमाचे मारे गए, धक्के मारे गए, उसको सरकंडा मारा गया, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया। वहां से भारी सलीब उठाकर यीशु मसीह ने यरूशलेम के नॉर्थ की तरफ गुलगत्ता नामी जगह का सफ़र किया। गुलगत्ता जिसको कैलवरी भी कहा जाता है, यानी खोपड़ी का मुकाम, वहां तक यीशु गए, और बाद में 7 सलीबी कलमात सलीब के ऊपर अदा करने के बाद यीशु मसीह ने अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द कर दी थी। जब मसीह खुदावंद ने दम दे दिया, अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द कर दी, तो वहां पे उसकी सलीब के ऊपर ही उसकी मौत की तस्दीक की गई। यीशु मसीह के पास जब रूमी सिपाही आए तो अमूमी एतबार से जो हड्डियां तोड़ी जाती थीं, जो डाकू अभी नहीं मरते थे उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती थीं, लेकिन जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो मर चुका है। और वहां पे ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत का तकमीला हुआ कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। वहां पे उन्होंने उसकी मौत की तस्दीक करने के लिए यीशु के दिल को छेदा तो वहां पे पानी और खून बह निकला। इसका मतलब था कि अब कोई इब्हाम नहीं रहा, क्योंकि जब दिल के ऊपर नेज़ा मारा गया, दिल की बैरूनी सतह पर एक झिल्ली होती है, ये दिल को चारों तरफ से कवर किए होता है, इसको पेराकार्डियम कहते हैं। इस पेराकार्डियम में पानी नुमा मादा होता है, और जब ये झिल्ली टूट जाती है तो ये पानी बाहर निकल आता है। और साइंटिफिकली अगर ये झिल्ली जो है, पेराकार्डियम जो है, जो बैरूनी सतह है पानी का मादा जिसमें होता है, अगर ये डैमेज हो जाए, टूट जाए, कट जाए, तो उसके बाद किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। अब यहाँ पे यीशु मसीह की मौत की तस्दीक हो गई। इसके बाद का जो प्रोसेस था वो ये था कि उसकी लाश को लेकर उसको दफन किया जाए। तो दफन करने के लिए मुख्तलिफ अदयान में मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो मसीही हैं और बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो कब्रें खोदते हैं और मट्टी के अंदर अपने मुर्दों को दफन करते हैं। पारसी जो हैं बहुत सारे वो अपने मुर्दों को बाहर बैरूनी जगहों पर छोड़ आते हैं और वहाँ पे जानवर और परिंदे और हैवान उनको खा लेते हैं। इसी तरह हिंदू जो हैं वो जला देते हैं। मसीह के दौर में पहाड़ों के अंदर कमरानुमा कब्र बनाई जाती थी और ये ऐसा ही राइज तरीका था। जब यीशु मसीह की लाश को लेने के लिए पिलातुस के पास एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम यूसुफ था, जो अरमतिया का रहने वाला था, जिसके ताल्लुक से लिखा है कि वो यीशु का शागिर्द भी था, वो खुदा की बादशाही का मुंतज़िर भी था और एक मुशीर भी था, एक अच्छा शख्स था। उसने जब यीशु की लाश लेने का मुतालबा किया तो एक बात सामने जो चैलेंज उसको पेश आया था वो ये था कि उसको नई कब्र में रखा जाए जहाँ पे पहले कोई मुर्दा दफन ना किया गया हो। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहूदी जो थे वो एलीशा नबी की हड्डियों से वाकिफ़ थे। एलीशा नबी की हड्डियों से टकराकर एक मुर्दा जिंदा हो गया था और यहूदी नहीं चाहते थे, जो साथ साथ थे पिलातुस के, कि कोई ऐसा वाक़या फिर से सरंजाम वहाँ पे दिया जाए। यूसुफ ने अपने लिए एक नई कब्र खोदी थी। जब उसने ऑब्वियसली उसको बताया होगा तो उसने इजाज़त दी कि इसको उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। चंद बातें मैं वहाँ पे रखने लगा हूँ आपके सामने जो इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगी कि वहाँ पे जब कब्र में किसी शख्स को रखा जाता था, मुर्दे को रखा जाता था, तो उसकी क्या कैफियत होती थी। अमूमी एतबार से जो शख्स मर जाता था
उसको उसके पूरे जिस्म पर जो कफन होता था वो पट्टियां होती थी, उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां लपेट दी जाती थीं, उसको सूती पट्टियां होती थी, यही कफन होता था। सर के ऊपर एक रुमाल बांध दिया जाता था और उस पूरी जो पट्टियां होती थी उनको मसाला जात, खुशबूदार मसाला जात लगाए जाते थे। कदीम मिस्र में लोग जो थे वो मसाला जात लगाकर अपनी लाशों को महफूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे दफन करने के लिए, कमरे में दफन करने के लिए या कब्र में दफन करने के लिए मखसूस खुशबूदार मसाला जात लगाए जाते थे। और जब ये मसाला जात जिस्म के साथ लगते थे तो जो पट्टियां होती थी वो हार्ड होना शुरू हो जाती थी। ये ऐसी सूरत हाल हो जाती थी जिस तरह हम कई दफ़ा किसी की टांग या हाथ टूट जाता है तो वो प्लस्तर करवाता है और प्लस्तर बहुत हार्ड होता है, इसी तरह ये कफन भी हार्ड होना शुरू हो जाता था, सख्त होना शुरू हो जाता था। अगर कोई शख्स जिंदा होता भी, यानी अगर उसका सांस होता भी, तो उस वक्त कब्र के अंदर वो पट्टियों में इतना जकड़ जाता था कि दम घुटने से वो मर ही जाता था। इसके बाद और भी एक काम हुआ। जब मसाला जात लगाने के लिए औरतें जा रही हैं तो वो सोचती जा रही हैं कि हमारे लिए कब्र के मुंह से पत्थर को कौन लुढ़काएगा। यानी एक और चैलेंज था कि जो कब्र थी उसके बाहर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन सिर्फ पत्थर नहीं रखा गया यीशु मसीह की कब्र पर। यीशु मसीह के शागिर्द भूल चुके थे यीशु मसीह की नबूवत को, उसकी प्रोफेसी को, कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन वहां पे जो यहूदी थे, सरदार काहिन थे, फकीह और फरीसी थे, वो सब जो उसे मसलूब करने वाले थे, उनको ये बात याद थी कि उसने कहा था। इसलिए वो पिलातुस के पास जाते हैं और कहते हैं दूसरे दिन जाकर कि ऐसा करो, उसकी कब्र के बाहर पहरा बिठा दें, सिपाही खड़े कर दें। पिलातुस कहता है तुम्हारे पास तो फौजी हैं, सिपाही हैं, उनको ले जाओ और जितना चाहते हो वहां पे पहरा दो। और वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो उसने कहा था वैसा ही वो करे और वो जिंदा हो जाए और पिछला धोखा पहले धोखे से भी ज्यादा खतरनाक हो। एक मुर्दा शख्स के बाहर पहरा बिठा दिया गया और इसके साथ साथ उस कब्र को सील कर दिया गया, जिससे मुराद ये थी कि कोई भी शख्स अब उस कब्र को खोल नहीं सकता था रूमी परमिशन के अलावा। जिस शख्स ने भी अंदर जाना है उसके लिए ज़रूरी था कि रूमी सल्तनत से बाकायदा इजाज़त ली जाए और फिर ही वो अंदर जा सकता था, नहीं तो कोई भी शख्स उस सील को खोल नहीं सकता था। सरबमोहर पत्थर को खोलना गैर कानूनी था, मुमकिन ही नहीं था कि कोई उसको खोले और उसके अंदर चला जाए। मैं खुश हूं इस बात को लेकर, इंसान की क्या हैसियत है कि वो यीशु मसीह को कब्र में रोक सकता, खुदा के मंसूबों को रोक सकता। वाक़यात जो किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं, अनाजील अरबा यानी चारों अनाजील में ये वाक़यात दर्ज हैं। क्या लिखा है कि पत्थर लुढ़का दिया गया और मोहरें खुल गईं और रूमी सिपाही डर गए, कांप गए और डर कर भाग गए। जब औरतें वहां पे आती हैं तो वो देखती हैं कि कब्र के बाहर जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर जो है अपोजिट साइड में लुढ़का हुआ था। यूं समझें कि ये एक रोलिंग पत्थर होता था जिसको एक लेन में आगे की तरफ रोल किया जाता था, रास्ता बनाया होता था। लेकिन अमूमी तौर से जिस तरफ पत्थर लुढ़काया जाता है, ये पत्थर उस तरफ नहीं लुढ़का था बल्कि ये अपोजिट साइड की तरफ लुढ़का था, जिससे मुराद ये थी कि ये पत्थर जो है किसी इंसान ने नहीं खोला, ये पत्थर किसी इंसान ने नहीं लुढ़काया, बल्कि ये खुदा की तरफ से लुढ़काया गया है। खुदा ने इसको अपोजिट साइड पे खोला है। औरतें जब अंदर गईं तो घबरा गईं, डर गईं। किताब मुक़द्दस बयान करती है वहां पे उन्होंने फरिश्तों को देखा और फरिश्तों ने उनको बताया कि तुम यीशु को ढूंढती हो, वो यहां नहीं बल्कि अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। उसके जिस्म के ऊपर जो कफन था उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरह से तितली प्यूपा में से निकल जाती है वो निकल गया और कफन उसका वहीं पर पड़ा था। और क्या खूब कहा किसी शायर ने, जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है और इंसानों में रहना कितना मुश्किल है। जहर गमों का पीना कितना मुश्किल है और इंसानों में रहना कितना मुश्किल है। सूली पे चढ़ जाना माना आसान सही, सूली पे चढ़ जाना माना आसान सही, मर के जिंदा हो जाना कितना मुश्किल है। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय।
मेरा और आपका यीशु जब जी उठा तब दर हकीकत इब्लीस को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो गई थी, और जितनी भी बातें उसके ताल्लुक से लिखी थी वो सारी पूरी हो गई थी। और याद रखें, किताब मुकद्दस बयान करती है कि जब उसने जान दी उस वक्त बहुत सारे ईमानदार जी उठे थे, और यीशु मसीह के साथ ही वो यरूशलेम में दाखिल हुए थे। बहुत सारे लोगों पर यीशु जाहिर हुआ, और मुकद्दस तोमा रसूल ने उसको चेक किया, हाथ लगाकर, ठोक कर। जिस तरह हमारे पास एक नोट हो, असली या नकली की पहचान की जाती है, स्टेट बैंक डिक्लेयर करता है या कोई भी बैंक बता देता है कि ये असली है या नकली, तो इसी तरह से मुकद्दस तोमा ने हाथ डाल के तस्दीक कर दी कि असली है। जो नबूवत यीशु ने की थी वो सच साबित हुई कि वो मरा और इब्लीस को शिकस्त देकर तीसरे दिन जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और कब्र जो थी वो खुली की खुली रह गई, पत्थर जो था वो लुढ़काया गया, सिपाही जो थे वो भाग गए। इसलिए मैं कहता हूं, ईद क़यामतुल मसीह दुनिया की सबसे बड़ी ईद है कि हम उस शख्सियत पर ईमान रखते हैं, उस मसीह को मानते हैं, उस खुदा पर इकरारुल ईमान रखते हैं जिसने मौत को, कब्र को और इब्लीस को शिकस्त दी, जो मरा तो जरूर लेकिन मरा पड़ा नहीं बल्कि जिंदा हो गया। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी ईद है। और दूसरी बात है, मुर्दों की क़यामत भी होगी। यीशु आएंगे और फिर मुर्दे जी उठेंगे और यीशु के हुजूर में हाजिर हो जाएंगे। और तीसरी अहम बात इसमें से ये निकलती है कि मुर्दे जी किस तरह उठेंगे। ये सारी बातें हमें यीशु मसीह की क़यामत से नजर आती हैं। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी कलीसिया और टीम लोगोस की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और जाने से पहले एक बात, अगर आपने अभी तक लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली मुनफरिद बाबरकत वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को शेयर भी करें, इसके लिंक को अपने जो ख़ानदान हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर भी करें, ताकि आपके वसीला से, जब आप शेयर करेंगे तो आपके वसीले से लोग बरकत पाएंगे और आप भी बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।